Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home and are doing well in this tough time. So in today's video, we are going to discuss about class 9th Science NCERT chapter number 8, that is motion. For your kind information, I would like to tell you that we have uploaded 8 part of the same chapter, that is motion part 1, motion part 2 till motion part 9. If you have not watched those parts, then please go to our channel. All the videos will be available. Before watching this video, please watch all those parts, otherwise nothing will be clear to you. For your better understanding, you must watch all those parts. After understanding the basic of the chapters, you will be able to understand this concept. Okay, so in this video we need to talk about the calculation that can be made with the velocity time graph. That means what are the things that can be calculated by using velocity time graph, right? So I have mentioned the following things that can be calculated. There are certain things why we are studying about the VT graph, what is the significance of VT graph. So in this video we need to talk about all those things that can be analyzed or that can be calculated from VT graph, right? So please watch this complete video till the end so that everything will be very clear to you. If you have any doubts after watching this video, then please post your doubt in the comment section below, and if you have any suggestion regarding to the video, then please post your suggestion in the comment section below, right? So the first thing that we can calculate is velocity. Okay, if they have given you a VT graph, then what you can calculate? You can simply calculate the velocity of the object at any given instant of time, right? So for example, we have taken over here, just wait. Okay, they have given you a velocity time graph just like that. This is your VT graph, and they are asking you to just, this is the time 1, 2, this is the time axis, this is the velocity axis. Here is the velocity 5, here is the 10, here is the 15. Right now, this is the graph over here. Now they are asking you to calculate the velocity. Then how can you calculate? Just very simple. This is the time 1 second, this is the time 2 second, this is the time 3 second. So then you can simply get the value that velocity at 1 second is 5 meter per second. Okay, and you can simply you will be able to observe easily that the velocity at time t equals to 2 seconds is just 10 meter per second. Clear? So you know, the velocity time graph can also be used in the calculation of velocity at any given instant of time, right? Second thing what we can calculate, second thing is displacement covered by the object in a given time interval. For example, if the object is moving with certain velocity and they are asking you to calculate the displacement covered in those time, like if the object is moving with different velocities at different time intervals, then they will ask you that what will be the displacement covered by the object in a given time interval. Like they can ask you from 5 second to 10 second, they can ask you from 0 to 10 second, whatever the interval is given, then you need to calculate the displacement. So we will be able to find the displacement by using the simple VT graph. Okay, हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग दैट कैन बी कैलकुलेटेड इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट of the VT graph. If you want to calculate the acceleration, then simply you can use VT graph, and after using the VT graph you will be able to get the value of the acceleration, right? So these are the few things that can be calculated from the VT graph, and now we will be discussing that how these things can be calculated, what is the analytical method, what is the calculation involved, and what can be the whole procedure, that how can be these things can be calculated with the help of VT graph. So please stay tuned till the last. Okay, please watch this complete video. Each and everything will be very clear to you. So अभी देख लेते हैं एक बार. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन फ्रॉम VT ग्राफ. दैट मीन्स आप VT ग्राफ से कौन कौन सी कैलकुलेशंस को कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. देयर आर वेरियस पैरामीटर. ओके, जिसे आप यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आपको VT ग्राफ गिवन है, देन यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वेलोसिटी. आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी टाइम पे. अगर आप पूछ रहे हैं, जैसे मैंने आपको VT ग्राफ गिवन है यहाँ पे, टाइम 1 t इक्वल्स टू 1 पे भी आप वेलोसिटी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. टाइम t इक्वल्स टू 2 पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम t इक्वल्स टू 3 पे भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट?
सो फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपको किसी भी टाइम इंटरवल में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 0 to 5 सेकंड तक या 0 to 10 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप वहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज़ है वो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन। तो ओके, सो 3 थिंग्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वीटी ग्राफ। क्या क्या चीज़ें हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में, और आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में, राइट। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट ऑल द थिंग्स इन योर कॉपी so that your notes will be ready, and whenever you are reading these notes, then everything will be very clear to you, because theoretical portion is very very important. And as you are studying in the 9th standard, so you need to write the question answers in the examination. If you're not writing the theory, then you will not be able to write the answers in your copy or in your notebook. Okay, so please take the screenshot of this, and you can pause the video to make a note of it. Whatever the method is suitable to you, you can do whatever you want, right? So please pause the video to make a note of it. Okay, I think you have taken the screenshot. Okay, so let's recall to the next concept. Just wait. So I think you have taken the screenshot of previous concept. Now let's recall all those things, that how can we do different calculation by using VT graph under different condition. In our previous video, part number 9, we have discussed various standard condition under which velocity time graph can be drawn. अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, बहुत सारी कंडीशन डिस्कस किया था कि आई थिंक 4-5 स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट अगर उस कंडीशन में मूव करेगा देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन लेने वाले हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर उसका ग्राफ कैसा होगा, ये आपका ग्राफ है वीटी ग्राफ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीटी ग्राफ। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अभी इस ग्राफ में हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है। लाइक आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपका ये टाइम 0 है, ठीक है, तो 0 टाइम पे भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपका कुछ पर्टिकुलर, जैसे हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे टाइम t1 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी टाइम, जब टाइम आपको किसी भी टाइम पे आप चेक कर रहे हो तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू सेम मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी v होगी, यहाँ पे भी v होगी, यहाँ पे भी v होगी, यहाँ पे भी v होगी। तो जितने भी टाइम आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द वीटी ग्राफ। बहुत इजी है। अगर आपसे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पूछ रहा है किसी भी टाइम पे, तो आप इजीली आपको विजिबल होगा, वहाँ से आप देख के उसको बता पाओगे। नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाले हैं। कैसे डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे देखते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी सिंस वेलोसिटी इक्वल्स टू displacement, this is the very basic formula, displacement upon time interval, displacement upon time interval. This is the mathematical formula that whenever I have taught you about the velocity, I have discussed about the velocity, then I have told you velocity का formula आपको पता है क्या होता है, displacement upon time interval और time taken। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी आपको पता है कांस्टेंट है, अगर टाइम इंटरवल आप चेक कर रहे हो वेलोसिटी आपकी सेम है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटीज। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, दैट इज v। डिस्प्लेसमेंट को आप s से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, t1 से स्टार्ट हो रहा है, t2 पे t1 t2 के बीच का आपको टाइम इंटरवल चाहिए, दैट मीन्स t2 माइनस t1। ठीक है, ये 0 to t1 है, ये 0 to t2 है। अगर आपको t1 और t2 के बीच का चाहिए तो टाइम इंटरवल कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टाइम कितना है t2 और इनिशियल टाइम कितना है t1। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द टाइम इंटरवल, बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू। सो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल वैल्यू ऑफ द टाइम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द टाइम, देन व्हाट यू विल गेट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जस्ट v into t2 minus t1। दिस इज योर displacement. Listen,
Now look at carefully this. What is the value of the V? V is just this one. Okay, if you want to just check it out, this is the value of V, because this is V, this is also V. Just wait, this is also V. okay, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी है? V रिप्रेजेंट हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो T1 T2 माइनस T1, ये वाला, ये आपका है T2 माइनस T1. ओके, ये जो वैल्यू है टाइम इंटरवल वो कितना आ रहा है? T2 माइनस T1 आ रहा है. अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, V किसकी वैल्यू है? अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पे AB की वैल्यू है. किसकी वैल्यू है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ AB. एंड T2 माइनस T1 किसकी वैल्यू है? ये A to D, ये A to D की वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD. ओके, राइट नाउ अभी यहाँ पे आपने देखा AB V को हमने रिप्लेस किया है AB से, क्योंकि जो V है वो किसकी वैल्यू के इक्वल है? AB के इक्वल है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन AB एट द प्लेस ऑफ V. यहाँ पे हमने AB मेंशन किया है. यहाँ पे जो AD है ये किसके इक्वल आ रहा है? टाइम इंटरवल के इक्वल आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे AD मेंशन किया है. और ये क्या दिख रहा है आपको? फिगर कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है. दैट मीन्स अगर आप रेक्टेंगल की लेंथ को रेक्टेंगल की ब्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं, देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. दैट मीन्स अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, देन व्हाट यू विल डू सिंपली, ये जो फिगर कंस्ट्रक्ट होगा, ये जो फिगर होगा अंडर VT ग्राफ, उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है. सिंपल. हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द फिगर एनक्लोज्ड बाय द VT ग्राफ. जो भी VT ग्राफ में फिगर बनेगा, चाहे वो ट्राइंगल बने, चाहे वो रेक्टेंगल बने, चाहे वो स्क्वायर बने, चाहे ट्रेपेजियम बने, उस फिगर का आपको एरिया कैलकुलेट करना है. राइट? जैसे ही आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यू कैन मेक अ नोट of this point in your notebook. right? So let's recall all those things once again. कैसे हम, अभी मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है. अभी हम कौन सी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी है, V कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये टाइम इंटरवल T1 है और ये टाइम इंटरवल आपका यहाँ पे T2 है. नाउ अभी हमने चेक किया है यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो सेम ही आ रही है. यहाँ से यहाँ तक V है वेलोसिटी, ये सब सारी वेलोसिटीज V होंगी. तो ये जो AB है ये भी V है और CD भी V है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं. ठीक है. और टाइम इंटरवल कितना आ रहा है? ये जो AD की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? T2 माइनस T1. ये आपको इतना मेंशन करना पड़ेगा जिससे कि आपको टाइम इंटरवल आपने कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, अब इजीली आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ let's get the formula. As you know, this is the very common formula of velocity. Velocity equals to what? Displacement upon time interval. Right? This formula is very common. I think you have studied whenever I was teaching you velocity, speed, all those parameters. Then displacement upon time interval. Then velocity is represented by V because it is having a constant value. Constant value है velocity की V, इसलिए मैंने यहाँ पे V से represent किया है. ये velocity हो गया आपका. Displacement is always represented by the letter small s. Either S से represent करते हैं. That's why we have written the displacement by S only. And now the time interval is what? Time interval is T1 to T2. If you are just taking the time interval, then it becomes T2 minus T1. आपको final time से initial time subtract करना है, then you will get the time interval. Right? Now we need to find the displacement. देन मेकिंग S एज ए सब्जेक्ट, आपको S को सब्जेक्ट करना है. यहाँ से जो डिवाइड में था इसे मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर दिया. S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये TV था और T2 माइनस T1 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया. ये अभी हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ से V किसकी वैल्यू है. यहाँ से V को रिप्लेस कर दे सकते हैं AB से. AB की वैल्यू है, ये हो गया. और T2 माइनस T1 किसकी वैल्यू है? AD की वैल्यू है ये. और ये AB क्या है? ये आपका ब्रेड्थ है और ये AD क्या है? लेंथ है. तो अगर किसी भी ये रेक्टेंगल जैसा फिगर आपको दिख रहा है, अगर रेक्टेंगल की लेंथ को और ब्रेड्थ को आप मल्टीप्लाई करते हो, देन व्हाट यू विल गेट? यू विल सिंपली गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. दैट मीन दिस इज द कंक्लूजन that whenever we are dealing with the VT graph and if we want to calculate the displacement, then we will simply calculate the area under the figure of VT graph. जो भी फिगर कंस्ट्रक्ट होगा उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. राइट? एरिया इनक्लोज्ड बाय VT ग्राफ. जो भी फिगर होगा
जितना भी एरिया इनक्लोज करेगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? जब भी आपको वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप फिगर को चेक करोगे, वीटी ग्राफ में कौन सा फिगर इनक्लोज हो रहा है। अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे, अगर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so please take the screenshot. Either you can pause the video to make a note of it. Whichever the method is suitable to you, you can use that one. Just wait. Okay, I think you have taken the screenshot of the previous concept. Now let's discuss case 2. And listen one thing, whenever we are dealing with the VT graph, then only two calculations are very important. One is of displacement and one is of velocity. जब भी आप VT ग्राफ को एनालाइज कर रहे होगे, VT ग्राफ से कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो दो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा वो, एक तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को बोलेगा। ओके, सो इससे पहले वाले ग्राफ में मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी, उसकी स्लोप जीरो थी, उसमें कोई भी स्लोप नहीं था, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो था। अभी डिस्कस करते हैं। अभी इससे पहले वाले में आपने देखा स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जस्ट द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? दिस वाज द ग्राफ व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर कोई भी स्लोप नहीं है उसमें। स्लोपिंग लाइन कैसी होनी चाहिए थी? दैट मीन्स इस तरह से कोई भी लाइन अगर ड्रॉन होगी, कोई भी एंगल फॉर्म करेगी एक्स एक्सिस से, तो वो स्लोप बोलते हैं। यहाँ पे ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं स्लोप। ओके, अगर स्लोप नहीं है तो फिर आपका यहाँ पे इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, बिकॉज देयर वाज नो स्लोप इन द लाइन। उस केस में जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी स्लोप नहीं था, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। एंड एक्सेलरेशन इज हैज अ डेफिनेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द चेंज इन वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो फिर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? जीरो होगा। सो प्लीज रिकॉल दिस थिंग, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट केस द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। आई हैव मिस्ड दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस टाइम। ओके, जस्ट वेट। Now we need to discuss about the second case. What is the second condition? Second condition was when the initial velocity of the object is zero and the velocity increases uniformly. कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, बट कैसे इंक्रीज हो रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। देखते हैं अभी तो फिर कैसा ग्राफ आएगा। मैंने आपको बताया था इनिशियल इसकी वेलोसिटी जीरो है एंड दिस इज हैविंग अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द वेलोसिटी। यहाँ पे कैसे इंक्रीज हो रही है? यूनिफॉर्मली। और मैंने आपको बताया था अगर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज करती है देन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज विजिबल? द ग्राफ विल बी जस्ट स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन और स्लोपिंग अपवर्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो फिर कैसा ग्राफ आता है? जस्ट लाइक दिस, स्लोपिंग लाइन और लाइन स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोपिंग अपवर्ड है, ठीक है? ये कब होता है? जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। तो इस वाले केस में आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ओके, इन दिस केस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज कमिंग स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोपिंग अपवर्ड है। अभी देखते हैं इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस ग्राफ। अभी इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज what? Just very simple. I have told you whenever we are dealing with a VT graph and if you want to calculate the displacement, then you need to calculate the area of the graph. Whatever is the figure enclosed by the graph, then you can calculate the area of that figure. जो भी फिगर बनेगा ग्राफ में उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे, राइट? सो ये O है, ये या A मेंशन कर सकते हो आप, यहाँ पे इसका नेमिंग भी कर सकते हो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जस्ट वेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AB OAB, जस्ट वेट, OAB, राइट? सो जब भी आप VT ग्राफ को डील कर रहे हो और आपको इस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको उस फिगर को चेक करना है और उस फिगर का एरिया कैलकुलेट कर देना है। अगर आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जस्ट वेट। नाउ अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट।
1/2 base into height. This is the formula of right angle triangle, area of right angle triangle. And what you will get whenever you are calculating the area, क्या कौन सी वैल्यू आपको मिल जाएगी? आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट है सिंपल. 1/2 बेस कितना है चेक कर लेते हैं. यहाँ पे बेस कितना है ट्राइंगल का? 0 to t. t है ना, तो यहाँ पे आपका t हो गया बेस, और इसकी हाइट कितनी है? v. तो ये आपका सिंपल अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को 1/2 vt, राइट. ये आपकी वैल्यू हो गई 1/2 vt. ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी. कैसे कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करेंगे ग्राफ का. यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया है तो कितना आया? 1/2 vt. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कैलकुलेशन दैट कैन बी डन विद दिस ग्राफ. Second, I have told you acceleration. Only two calculation are very important. First one is acceleration, sorry, displacement, and second one is acceleration. Both are very important. Whenever they will give you the question, then they will ask only two things. अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो दो ही चीज़ें पूछेंगे, या तो acceleration आपसे पूछने वाले हैं या फिर आपसे displacement पूछेंगे. ओके, सो acceleration कैसे निकालते हैं? I have told you acceleration equals to acceleration, whenever you are trying to calculate the acceleration from vt graph, then you need to calculate the slope of the line. ये लाइन है, इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी है. ये वाली लाइन OB, वो ये लाइन है, इसकी आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है. वेरी सिंपल, यहाँ मेंशन कर देता हूँ. स्लोप ऑफ लाइन OA, स्लोप ऑफ लाइन OA. जस्ट वेट. नाउ the slope gives you acceleration. If you are calculating slope from vt graph, then it will give you the acceleration. अगर आप slope calculate कर रहे हैं तो फिर आपको acceleration मिल जाएगा. slope कैसे calculate करते हैं? y upon x, जो y में वैल्यू होगी ये वर्टिकल वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है. y वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं x वाली वैल्यू से, तो आपको स्लोप मिल जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे y में कितनी वैल्यू है? v है, और यहाँ पे x में कितनी वैल्यू है? t है. मैंने आपको बताया था ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. तो जब भी आप किसी भी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा, आप क्या करोगे? y वाले डिस्टेंस को x वाले डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द स्लोप. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं. a की वैल्यू कितनी आ रही है? v/t, वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा. यहाँ पे बहुत सिंपल था ये, दैट्स वाई. सो प्लीज़ एक बार चेक कर लेते हैं फिर से. अभी हमने कौन सा केस डिस्कस किया है? अभी हमने डिस्कस किया है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है. इन दिस केस वी विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ. अभी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में हमने कि कैसा भी ग्राफ होगा इस टाइप का. 0 है और अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, देन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड. ये स्लोपिंग अपवर्ड लाइन है. ठीक है. आपको मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. क्या करेंगे? नथिंग, ओनली द एरिया ऑफ द फिगर अंडर द वीटी ग्राफ. जो भी वीटी ग्राफ में फिगर कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे शेडेड रीजन मैंने शेड भी किया हुआ है. तो ये ट्राइंगल बन रहा है OAB, और ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बहुत सिंपल है. यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है इसका? t है, और हाइट कितना है? v है. मल्टीप्लाई कर दिया, s इक्वल्स टू 1/2 vt. s इज वॉट? s इज डिस्प्लेसमेंट. Okay, now second calculation that we have done, that is acceleration. Acceleration is what? Slope of the line. I have told you, अगर आप कभी भी VT ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं और आपको स्लोप एक्सेलरेशन चाहिए तो आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे. ये स्लोपिंग लाइन है तो स्लोपिंग लाइन में स्लोप आएगा. इससे पहले वाले ग्राफ में लाइन स्ट्रेट थी, स्लोप नहीं था उसमें, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कितना था? 0 था. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा. इस वाले में एक्सेलरेशन कितना होगा? स्लोप ऑफ लाइन OA, ये OA लाइन है, इसका स्लोप निकालना है. सिंपल, मैंने आपको बताया स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं. y वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे y वैल्यू है कितनी है? ये y में कितनी वैल्यू है? v, और x में कितनी वैल्यू है? t. तो y/x, तो v/t हो जाएगा. a इक्वल्स टू v/t. दिस इज योर एक्सेलरेशन. I think this idea is very clear to you. Please pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot. Okay. Now I think you have taken the screenshot of the previous concept or previous condition. Now we need to discuss the case 3. That is very, very important, and please make sure this concept will be very clear to you. Please watch. If you're not clear in one shot, please watch the video again and again, because this will be useful whenever we are deriving the kinematic equation or the equations of motion. That is very important. So the third condition is when the initial velocity of the object is not 0 and velocity increases uniformly. That means whenever the object is
already moving with some velocity, like it can be moving with 25, 10, whatever is the initial speed, the initial velocity is not zero, and the increase there is an increase in the velocity that is uniformly. Okay. Now we have discussed about this graph. This is the graph whenever the object is moving under this condition. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो फिर आपको इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है। ये आपका जीरो है, यहाँ पे इस t इक्वल्स टू जीरो पे भी ये जो हम वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट्स सपोज ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, एट इनिशियली दिस इज मूविंग एट इन द वेलोसिटी u. This is moving with the velocity u. Now the velocity after t, because this velocity is increasing uniformly, that's why what kind of graph we will get? We will get a straight line sloping upward, and after time t the velocity becomes v. Okay, this is the final velocity, this is the initial velocity. Now let's calculate all those things whatever we are doing in the previous cases. Now we need to calculate the displacement, and after that we need to calculate the acceleration. Very, very important. You must understand this concept very clearly. So first is displacement. First calculation is displacement. So how the displacement can be calculated? I have told you displacement, if you are analyzing the VT graph, then the displacement can be calculated by calculating the area of the figure that is enclosed under the VT graph. जो भी figure आपका बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज ये O है, ये आपका A पॉइंट हो गया, यहाँ पे आप A मेंशन कर सकते हो, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, ये C है। ओके, सो नाउ ये कैसा फिगर बन रहा है? ये बन रहा है ट्रेपेजियम। कैसा बन रहा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। जैसे ये आपका फिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट वेट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये आपका एक ट्रेपेजियम है, इसमें आपकी दो पैरेलल साइड्स होंगी और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। दिस इज हाउ द ट्रेपेजियम लुक लाइक। कैसा ट्रेपेजियम दिखता है? ऐसा दिखेगा। ये दो साइड पैरेलल हैं और ये दो साइड नॉन पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल साइड्स होनी चाहिए, दो नॉन पैरेलल साइड्स होनी चाहिए, राइट। तो अभी ये फिगर कैसा है? ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और उसको स्प्लिट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स चेक। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू area of trapezium OABC. This is okay, this is the trapezium. Just wait, I can write over here, just wait, because the space is not available. So displacement equals to area of trapezium OABC. Now I have told you how can we calculate the area of trapezium? Very simple. If you don't have the idea of the formula of trapezium, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है then no worry, आप इसको स्प्लिट कर लोगे दो फिगर्स में। हमने यहाँ पे ये फिगर नंबर 1 कर दिया और ये फिगर नंबर 2 कर दिया। नीचे आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ऊपर आपको ट्राइंगल। जैसे ये फिगर है ना, ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम है, तो ये आपका रेक्टेंगल बनेगा और ये ऊपर ट्राइंगल बनेगा। तो आप उसको स्प्लिट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अभी देखेंगे हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे देन हम डील करेंगे कैसे आप इसका डायरेक्ट एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ फिगर वन प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। यहाँ पर हमने दो फिगर्स में डिवाइड किया है, तो हमने क्या किया? हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द फॉर्मूला? अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, इफ यू हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूला देन नो प्रॉब्लम, यू कैन स्प्लिट दिस ट्रेपेजियम इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल एंड सेकंड पार्ट विल बी द ट्राइंगल। दोनों पार्ट्स में स्प्लिट किया है। अभी फर्स्ट पार्ट क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है फर्स्ट वाला, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जस्ट वेट। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ कितनी है? नीचे वाला जो फिगर है 1, लेंथ कितनी है इसकी? t, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? ये वाली ब्रेड्थ है इसकी, कितना है? u। तो ये u हो गया, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट।
सो 1/2 बेस कितना है इसका, t है, और हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से ये हाइट है इसकी, ये ट्राइंगल है, ये आपका सेकंड वाला, ये हाइट है, कितना हो गया v माइनस यू। ओके, अभी चेक कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, s इक्वल्स टू हो जाएगा ut प्लस हाफ, ये 1/2 बोल सकते हो, और आपका ये v माइनस यू इंटू टी। ये सिंपल आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमने क्या किया है, कैसे कैलकुलेट करा है एरिया ट्रेपेजियम का, स्प्लिट करके, पहले इसको रेक्टेंगल में स्प्लिट किया है, फिर ट्राइंगल में स्प्लिट किया है। ओके, दिस इज द हाउ ए डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द एरिया ऑफ द फिगर। अपने इस फिगर का एरिया मेजर किया है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन, that is the slope, just we are writing over here, slope acceleration. Okay, so acceleration, how can we calculate acceleration? I have told you, if you are dealing with the VT graph, then if you want to calculate the acceleration, then simply what you will do, you will calculate the slope of the line. तो यहाँ से start हो रहा है ग्राफ हमारा, slope of line AB, acceleration equals to slope of line AB। ये AB लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था स्लोप कैसे निकालते हैं, y में जो वैल्यू होगी लाइन और x में, y में कितनी वैल्यू, कितना इंटरसेप्ट है, ये कितनी वैल्यू है y में इसकी, v माइनस यू, ये v माइनस यू हो गया, और t आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू है या फिर x की वैल्यू है, x में कितना है, x में कितना इंटरसेप्ट है ये, और y में कितना इंटरसेप्ट है ये। जो डिस्टेंस आपकी x में होगी और जो y में होगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, y अपॉन x। ये आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, स्लोप आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। Just wait. This will be your acceleration. Is it clear? एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया है, कौन सा केस डिस्कस किया है, जब हमारा ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, किसी न किसी इनिशियल स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो ये ग्राफ होगा आपका। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फिगर आ रहा है वीटी ग्राफ के अंडर में, उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये फिगर कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको स्प्लिट किया है हमने, एरिया ऑफ फिगर नंबर 1, एरिया ऑफ फिगर नंबर 2। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, राइट। फिगर नंबर 1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है इसलिए मैंने यहाँ रेक्टेंगल मेंशन किया है, और ये आपका ट्राइंगल है इसलिए मैंने ट्राइंगल मेंशन किया है। एज यू ऑल नो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इसकी कितनी है, t है, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, u। तो u मेंशन कर दिया, ठीक है। ये कुछ v जैसा लग रहा है पर u है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ट्राइंगल का, ये t है, और इसका हाइट कितना है, v माइनस यू। यहीं तक तो है हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो आपका v माइनस यू, ठीक है। तो 1/2 बेस t है, हाइट इसकी v माइनस यू है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ut हो गया प्लस 1/2 v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू इंटू टी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस कंडीशन में, राइट। नेक्स्ट कंडीशन है आपका, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पैरामीटर, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वीटी ग्राफ का अगर आपने स्लोप कैलकुलेट किया, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप मीन्स y इंटरसेप्ट में जो वैल्यू होगी और x में जो वैल्यू होगी। y की वैल्यू है v माइनस यू, और x में कितनी वैल्यू है, t। दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने ये एक बार से अच्छे से समझ लिया, तो जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपकी बहुत ईजिली डिराइव हो जाएंगी, राइट। सो प्लीज फोकस ऑन दिस। इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड इन वन टाइम, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, and until it will get clear to you, right? So pause the video to make a note of it. Now I think you have taken the screenshot of the third concept, that is the previous concept. Now we need to discuss about case number 4, that is very important, or you can say condition number 4, when the object is moving with certain velocity, and in this case the velocity of the object is decreasing continuously, or you can say uniformly. So I have told you what kind of graph is visible to you, what kind of plotting of the graph, you will get this kind of graph. If the object is moving, let's suppose the object is moving with the velocity v, and after that if you are if you are just decreasing the if the velocity of the object is decreasing uniformly and finally it approaches to 0, then what kind of calculation
Okay, so in this case what we are discussing, in this case we are discussing the object is already moving with this velocity. This is a v velocity, the initial velocity is v, and after whenever the velocity decreases uniformly and it approaches to 0, the final velocity becomes 0. So velocity can be decreases by any method. If you are, for example, there is a car moving and suddenly if you have applied the brakes, then the velocity starts decreasing, and it can be decreased uniformly as well. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पहले से ही मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से और आपने उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन किया है, और हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसे डिक्रीज हो रही है, कैसे स्लो डाउन हो रही है, वो यूनिफॉर्मली हो रही है, देन दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज विजिबल टू यू. आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा. अभी इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बताया था, you need to calculate only two important things. First one is displacement, second one will be the acceleration. So let's deal with those calculations. First calculation will be displacement. So displacement is what I have told you. Whenever you are dealing with the VT graph, displacement is just equal to the figure enclosed under the VT graph. जो भी फिगर बनेगा तो ये कैसा बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका. This is a triangle. So we can write this area, you can write OAB. Okay, area of triangle OAB. And as you all know, how can we calculate the area of right angle triangle? Because this is the right angle triangle. So the right angle triangle has the area 1/2 base into height. 1/2 base into height. So just like that, 1/2. What is base over here? This is, let's suppose this is the time t. Okay, initially it was moving with the velocity v, and after time t the velocity becomes 0. So the base is having value t, and the height is what? This is 0 to v. This is your height. This is v. Okay, so in this case displacement equals to 1/2 vt. This will be your displacement. I think, is it clear to you? ओके अभी हमने क्या किया है, बहुत सिंपल, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. इस केस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है और सडनली उसकी स्पीड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है यूनिफॉर्मली. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी इसकी स्पीड और फाइनली कहाँ आ रही है, 0 पे. अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो वाई वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. दैट मीन्स आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, टाइम कुछ ना कुछ हो सकता है. एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है, वाई एक्सिस पे टाइम 0 होता है. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तो मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी वीटी ग्राफ में फिगर कंस्ट्रक्ट होता है. तो अभी फिगर कौन सा एनक्लोज हो रहा है, ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका आप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने मेंशन भी किया हुआ है. एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. तब मैंने मेंशन भी किया है 1/2 बेस कितना है, कितना बेस है इसका, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, t. बेस कितना हो गया, t. और यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी है, v. कितनी वैल्यू है, v. तो y में इसकी वैल्यू v, हाइट कितना हो गया, v. तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/2 vt. इज इट क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो देन प्लीज पोस्ट योर doubts in the comment section below, and I will be providing you the link of the WhatsApp group, so you can join the WhatsApp group. That will be a discussion forum thing. So at that group you can easily ask your question, whatever the question is coming in your mind, you can post in that group, and as soon as possible you will get the revert of that. Right now the next calculation is left, that is acceleration. One of the important calculation. Acceleration is what? Acceleration, I have told you, slope of VT graph. दिस इज अ लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली तो स्लोपिंग डाउनवर्ड लाइन आती है. अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो स्लोपिंग अपवर्ड लाइन आती है. अभी देखते हैं यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. स्लोप कैलकुलेट करेंगे जब भी आपका लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड है उस केस में स्लोप नेगेटिव होता है, और अगर स्लोपिंग अपवर्ड है उस केस में स्लोप पॉजिटिव होता है. इस केस में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव स्लोप होगा आपका. ठीक है, नेगेटिव आएगा स्लोप. कितना वैल्यू है, स्लोप कैसे निकालते हैं, नेगेटिव स्लोप आपका होता है सिंपल y/x. तो नेगेटिव ऑफ v/t. स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव. क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड है. अगर स्लोपिंग अपवर्ड होगा देन इन दैट केस द स्लोप विल बी पॉजिटिव. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप बेसिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. ये आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू है -v/t, या फिर आप इसका फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी, just wait, upon time.
upon time taken. Change in velocity upon time taken. So how can you calculate the change in velocity? Change is calculated from final minus initial after subtracting final minus initial. Final आपकी वैल्यू कितनी है, 0 है, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 माइनस वी अपॉन टी. तो आपका यहाँ से भी एक्सेलरेशन वही आने वाला है. आप फॉर्मूला कुछ भी लगाओ, ठीक है, यहाँ से आएगा माइनस वी अपॉन टी. फॉर्मूला लगा के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, स्लोप लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो यहाँ से नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि चेंज कैसे कैलकुलेट किया. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गई. इनिशियल कितना है, v है, तो 0 माइनस वी अपॉन टी. यहाँ पे भी माइनस वी अपॉन टी आ रहा है स्लोप. ओके, जब भी मैंने आपको बताया, जब भी लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड होगी उस केस में स्लोप नेगेटिव होगा. अगर आपका लाइन स्लोपिंग अपवर्ड है उस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. आई थिंक दिस इज all about your fourth concept or the fourth condition. Please take the screenshot. Either you can make the you can pause the video to make a note of it in your notebook. And listen one thing, notes are very important whenever you are studying anything, any theory concept. Then notes plays very important role, because you are the aspirant of 9th standard or whatever the foundation one. Then you need to write all the answers in the theoretical form. No matter if you are understanding the question, then you need to write the theory as well. That's why. Okay, pause the video to make a note of it. So students, this is all about your today's video. If you like this video, then please hit the like button, and if you are watching the video for very first time on our channel, then please subscribe to our channel and also press the bell icon and do all, so that you will get all the notification whenever we are uploading our new videos. And I would like to request you, please share this video as much as possible, because we need your love and support. If you are sharing this video, then most of the students will get benefit from this, because we are trying to provide free of cost content. We are not charging any money from you. So please share this video as much as possible. And once again, thank you so much for watching this long video, and thank you once again.